Friends, today we are going to review the current affairs of June 2025. On June 25, the central government observed Samvidhan Hatya Divas as a tribute to those who suffered during emergency imposed on June 25, 1975. जून 25, 1975 को जो इमरजेंसी लगा था तो उसमें जिन्होंने सफ़र किया था उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जून 25 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया. The Union Cabinet has approved the establishment of the South Asia Regional Center of the International Potato Center in Agra, UP. The aim is to boost potato productivity, increase farmers' income, and generate employment opportunities in the region. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट, तो साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर. कहाँ? आगरा, यूपी में. इसका एम है पोटैटो की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करना और जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Union Minister Sarbanand Sonowal inaugurated Sagarmala Finance Corporation Limited, India's first NBFC, that is non-banking financial company in the maritime sector. It will offer financial solutions to meet the financial needs of the maritime sector and reduce financial bottlenecks. यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनाग्रेट किया है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड. यह मैरीटाइम सेक्टर में इंडिया का पहला एनबीएफसी है. यह ऑफर करेगा मैरीटाइम सेक्टर में फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को, फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए एंड रिड्यूस करेगा फाइनेंशियल बॉटलनेक्स. In Ghaziabad, UP, Chief Minister Yogi Adityanath and Union Minister Dr. Jitendra Singh laid the foundation stone of a green data center. It is focused on environmental sustainability. The center will have a capacity of 30 megawatts. गाजियाबाद यूपी में एक ग्रीन डेटा सेंटर खोला गया है. इसका फोकस रहेगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे और इसका कैपेसिटी 30 मेगावाट्स है. नेक्स्ट इज India's first quantum computing valley will be launched in Amravati, Andhra Pradesh by January 2026. This quantum valley is expected to create employment for millions of professionals through research and innovation. इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वो लॉन्च होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जनवरी 2026 तक. This quantum valley is expected to create employment opportunities for millions of professionals through research and innovation. The central government has approved the establishment of the first small modular reactor SMR based nuclear power plant in Bihar. Under the nuclear energy mission, the government will set up SMRs in 6 states across the country. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि बिहार में एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट हो और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत गवर्नमेंट ने कंट्री के 6 स्टेट्स में ऐसा ही एसएमआर सेटअप करने का डिसाइड किया रहा है. The Adani Group has launched India's first off-grid green hydrogen plant in Kutch, Gujarat. With a capacity of 5 megawatts, it marks a significant milestone in the renewable energy sector. अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है क्या? इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट. कहाँ? कच्छ, गुजरात में. इसका कैपेसिटी है 5 मेगावाट और यह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the headquarters of the National Turmeric Board in Nizamabad, Telangana. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर्स इनाग्रेट किया है. कहाँ? तो तेलंगाना के निज़ामाबाद में. On June 25, 2025, the Andhra Pradesh government launched the Vidya Shakti initiative in the education sector.
The initiative will focus on improving the performance of slow learners in government schools. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विद्या शक्ति इनिशिएटिव। या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें स्लो लर्नर्स के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। Recently, the Salkhan Fossil Park in Sonbhadra district, UP, added to UNESCO's tentative list of World Heritage Sites. Located in the Kamur mountain range, the park covers 25 hectares and features 1.4 billion year old layered sedimentary structures. हाल ही में सलखान फॉसिल पार्क जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है, उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। यह कहाँ लोकेटेड है? कैमूर माउंटेन रेंज में, और यह 25 हेक्टेयर का है और 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है। On June 29, on the occasion of National Statistics Day, the Ministry of Statistics and Program Implementation launched the Goal Stats app. This app will provide citizens with real time and easy access to government statistics anytime, anywhere. गोल स्टैट्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। कब? तो 29 जून, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, उस दिन यह ऐप प्रोवाइड करेगा रियल टाइम और इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स कहीं भी और कभी भी। The Ministry of Tribal Affairs has launched the Adi Karm Yogi program to improve the implementation of tribal schemes. Under this program, officers will be trained and motivated for better implementation of tribal welfare schemes. आदि कर्मयोगी के प्रोग्राम कहाँ किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। क्यों? ताकि ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव हो सके। इस प्रोग्राम के तहत ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा और मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सके ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स का। The Ministry of Electronics and Information Technology, MIT, organized a 2-day artificial intelligence based training program for government officials at IIT Delhi. Its objective is to provide essential knowledge to central and state government officials and to emphasize its practical application. माइटी ने एक 2 दिन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। किनके लिए? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। कहाँ? आईआईटी दिल्ली में। इसका एम है कि जो एसेंशियल एआई नॉलेज है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोवाइड किया जा सके और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ध्यान दिया जा सके। The Maharashtra government has recently approved the 802-kilometer long Shaktipeeth Expressway project. This expressway will connect Nagpur city in Maharashtra with Goa. हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो कि 802 किलोमीटर लॉन्ग होगा। यह एक्सप्रेसवे किसको कनेक्ट करेगा? तो महाराष्ट्र का नागपुर को गोवा के साथ। On 31st May 2025, the 300th birth anniversary of Lok Mata Devi Ahilyabai Holkar has been celebrated. On this occasion, Prime Minister Narendra Modi released a 300 rupees commemorative coin and a postage stamp in her honor. 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का 300th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। इसी मौके पे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक 300 रुपये का कॉमेमोरेटिव सिक्का जारी किया और पोस्टेज स्टैंप जारी किया। Achieving a historic milestone under the Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram, Goa declared itself a fully literate state. This scheme, implemented by the central government for the period 2002 to 2027, aims to provide education to individuals aged 15 years and above who could not attend school.
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा ने खुद को एक फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया है। यह स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द टाइम पीरियड 2022 से 2027 तक। इसका एम था कि 15 साल से ऊपर के जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका एजुकेशन छूट गया था या स्कूल अटेंड नहीं कर पाए थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। The Government of India announced that central government employees retiring on or before 31st March 2025 with at least 10 years of service will be eligible for benefits under the UPS, that is Unified Pension Scheme. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि 31 मार्च 2025 के पहले या उस दिन रिटायर कर रहे हैं और कम से कम उन्होंने 10 साल का सर्विस किया हो तो वो यूपीएस के अंदर एलिजिबल हैं। Next is on June 1st, the Fit India Sunday on Cycle Tiranga Rally was organized at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi. Over 15,000 cyclists participated in the rally, which was dedicated to the Indian Army and brave soldiers of Operation Sindoor. 1 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसमें 15,000 से ज़्यादा साइकिलिस्ट ने भाग लिया और ये डेडिकेटेड था किसको? तो इंडियन आर्मी को और ब्रेव सोल्जर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था। Chief Justice of Delhi High Court Devendra Kumar Upadhyay inaugurated 34 digital courts at Rouse Avenue Court Complex for hearing cases under the Negotiable Instruments Act NI Act. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इनाग्रेट किया 34 डिजिटल कोर्ट्स को। कहाँ? तो राउज अवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। कैसे केसेस को सुनने के लिए? वैसे केसेस जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड भारत जीपीटी या भारत जेन, India's first indigenously developed AI-based multimodal large language model for Indian languages. It is designed to support 22 Indian languages and aims to promote artificial intelligence and innovation while embracing India's linguistic and cultural diversity. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है क्या? तो भारत जीपीटी या भारत जेन। यह क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएलएम है। किसके लिए? तो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। ये डिज़ाइन किया गया है इंडिया के 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए और इसका एम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके while embracing India's linguistic or cultural diversity. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Unit 1 of the Ghatampur Thermal Power Project in Kanpur, UP. It has a production capacity of 660 megawatts and marks a significant achievement in India's energy sector. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का यूनिट 1। ये कहाँ है? तो कानपुर यूपी में। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 660 मेगावाट्स का होगा और ये इंडिया के एनर्जी सेक्टर में सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। The Government of India recently announced the Census 2027, which will be conducted in 2 phases and will also include caste-based data. First phase 1st October 2026 and second phase 1 March 2027. हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेंसस 2027 जो कि 2 फेज में कंडक्ट होगा और इसमें कास्ट बेस्ड डेटा को भी इंक्लूड किया जाएगा। पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 में स्टार्ट होगा और दूसरा फेज कंडक्ट किया जाएगा 1 मार्च 2027। The Department of Land Resources under the Ministry of Rural Development launched the second phase of the Naksh program on June 2, 2025. Under this phase, officials will be trained in advanced geospatial technologies at 5 centers of excellence across the country.
हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, उसने नक्श प्रोग्राम का सेकेंड फेज लॉन्च किया है। इस फेज के अंदर ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसमें? तो एडवांस जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज में। कहाँ? तो कंट्री के 5 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में। India's first AI Special Economic Zone has been announced in Nava Raipur, Chhattisgarh, for the development of the technology sector. This will promote research in artificial intelligence and strengthen India's position as a global technology hub. इंडिया का पहला AISEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अनाउंस किया गया। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। यह क्यों किया गया है? तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए यह प्रमोट करेगा एआई में रिसर्च को, और इंडिया का पोजीशन स्ट्रेंथन करेगा एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब। From June 1, 2025, the Government of India launched an experiential learning program for youth at Jan Aushadhi Kendras under the Seva Se Seekhein, Learn from Service campaign. This initiative is jointly organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Ministry of Chemicals and Fertilizers. It is a 15-day program aimed at providing practical knowledge to the youth in the healthcare sector so that they can effectively operate Jan Aushadhi Kendras. 1 जून 2025 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया यूथ के लिए। कहाँ? तो जन औषधि केंद्र पे। और किस कैंपेन के तहत? तो सेवा से सीखे, दैट इज लर्न फ्रॉम सर्विस। यह इनिशिएटिव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। यह एक 15 दिन का प्रोग्राम है जिसमें एम किया गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके यूथ को हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि वो जन औषधि केंद्र को इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाएँ। The Asian Development Bank has withdrawn a loan of USD 434.25 million for the proposed 500 megawatt solar power project in Karbi Anglong, Assam, following opposition from local tribal communities. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो लोन दिया था 434.25 मिलियन का, उसको विड्रॉ कर लिया है। क्यों दिया गया था? तो कार्बी आंगलोंग असम में एक 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रपोज था, लेकिन लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऑपोजिशन के कारण इसको विड्रॉ कर लिया गया है। UP government approved 20% reservation for ex-Agniveers in police recruitment. Under this, Agniveers who complete 4 years of service under the Agnipath scheme will get employment opportunities after their service. अग्निवीर के लिए पुलिस रिक्रूटमेंट में 20% रिजर्वेशन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें अग्निवीर जो कि जिन्होंने अपने सर्विस का 4 साल कंप्लीट कर लिया हो अग्निपथ स्कीम के तहत, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। On June 1 to 2, 2025, the third Lavender Festival 2025 was organized in Bhadarwah, Jammu and Kashmir. It was inaugurated by Union Minister Dr. Jitendra Singh. The objective was to highlight the importance of lavender in the Indian economy. 1 और 2 जून को थर्ड लैवेंडर फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेट किया गया। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के भदरवा में। ये किसके द्वारा इनॉग्रेटेड था? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये किससे रिलेटेड है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैवेंडर इन द इंडियन इकोनॉमी को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट इज the government of Assam and Meghalaya have agreed to jointly launch the 55 megawatt Kalsi hydropower irrigation project on the Kalsi River, a tributary of the Brahmaputra. Both states also decided to work together to address the problem of urban flooding in Guwahati city. असम और मेघालय के गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि वो जॉइंटली लॉन्च करेंगे एक 55 मेगावाट का
कलसी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी पे? कलसी नदी पे। कलसी नदी किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का। दोनों स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो साथ मिलकर काम करेंगे ताकि गुवाहाटी सिटी के अर्बन फ्लडिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। Inspired by the city of Kitakyushu in Japan, the Telangana government has announced the development of an eco town across 80 acres in Hyderabad. The goal is to meet the needs of future generations with a special focus on sustainable development. कीताक्यूशु सिटी जो कि जापान का है, उससे इंस्पायर होकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वह हैदराबाद में 80 एकड़ का एक इको टाउन डेवलप करेगा। इसका गोल है कि फ्यूचर जनरेशन्स के नीड को मीट करना विथ अ स्पेशल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The Department of Posts under the Ministry of Communications has launched the Dhruva policy for the creation of geocoded digital address infrastructure. This will simplify services in e commerce, logistics, and governance while also promoting innovation between public and private stakeholders. Dhruva stands for Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address. ध्रुवा पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। क्यों? तो ये रिलेटेड है क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए। ये सिंप्लीफाई करेगा सर्विस ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स में, गवर्नेंस में, और प्रमोट करेगा इनोवेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब for reference and unique virtual address. Under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, Raja Khas village in Kangra district of Himachal Pradesh has been declared the state's first solar model village. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजा खास विलेज को स्टेट का पहला सोलर मॉडल विलेज घोषित किया गया है। On June 6, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the world's highest railway arch bridge, the Chenab Bridge, located in the Riyasi district of Jammu and Kashmir. Along with this, Prime Minister Modi inaugurated development projects worth over 46,000 crore in Katra. Key projects include India's first cable-stayed railway bridge, the Anji Bridge, the Vande Bharat train from Katra to Srinagar, and the Mata Vaishno Devi Institute of Medical Excellence, among others. 6 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया क्या? दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, जो कि चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ कितना? तो 46,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कटरा में। इस की प्रोजेक्ट में इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इंक्लूड होगा, जो कि अंजी ब्रिज है। वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर का, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस। On June 7, 2025, India's first agriculture hackathon has been organized in Pune, Maharashtra. Its objective is to promote the use of modern technologies to tackle the challenges arising from climate change in agriculture. 7 जून को इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ पुणे, महाराष्ट्र में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जा सके ताकि एग्रीकल्चर में जो क्लाइमेट चेंज के कारण चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं उनको टैकल किया जा सके। On June 9, 2025, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the tribal leader and freedom fighter Birsa Munda on his 125th death anniversary. 9 जून 2025 को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी किनको? तो ट्राइबल लीडर ऑफ फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा को उनके 125वीं डेथ एनिवर्सरी पे।
The UP government has announced the establishment of a bulk drug pharma park in Lalitpur. The aim is to reduce India's dependence on China and make the pharma sector self reliant. यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वह एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्टैब्लिश करेगा। कहाँ? तो ललितपुर में। इसका एम है कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है चाइना पे उसको कम करना और फार्मा सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाना। Sandeep Arya from Haryana created a world record by performing 20,000 continuous Surya Namaskars at the Sun Temple in Modhera, Gujarat. His name has been mentioned into the America Book and London Books of Records. हरियाणा के संदीप आर्या ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। कैसे? तो उन्होंने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया। कहाँ? तो सन टेम्पल मोढेरा गुजरात में। इनका नेम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेंशन किया गया है। The Delhi government has announced the establishment of India's first e-waste eco park in Holambi Kalan. Spread over 11.4 acres, the park will be capable of processing 51,000 tons of waste annually. दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वह इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क खोलेगा। कहाँ? तो होलाम्बी कलान में। ये 11.4 एकर्स में स्प्रेड रहेगा और ये इसका कैपेसिटी जो रहेगा वो 51,000 हेक्टेयर टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली वो प्रोसेस कर सकेगा। Maharashtra's most ambitious road project till date, the Samriddhi Mahamarg, is now fully operational. This 701-kilometer long expressway connects Mumbai to Nagpur. The official name of this expressway is Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahamarg. महाराष्ट्र का सबसे एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट जो था समृद्धि महामार्ग वह फुली ऑपरेशनल हो चुका है। यह 701 किलोमीटर का लॉन्ग एक्सप्रेस वे है जो कि कनेक्ट करता है मुंबई से नागपुर को। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। Next is President Draupadi Murmu has approved the Ladakh Official Language Regulation 2025. Under this, English, Hindi, Urdu, Bhoti, and Purji has been recognized as the official languages of Ladakh. हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव कर दिया लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025। इसके अंदर में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्जी को लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन in New Delhi. Its aim is to reduce the dominance of foreign languages in India's administrative functioning and promote Indian languages. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है भारतीय भाषा अनुभाग मतलब कि इंडियन लैंग्वेज सेक्शन। कहाँ? न्यू दिल्ली में। इसका एम है कि फॉरेन लैंग्वेजेस के डोमिनेंस को कम किया जा सके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके। Under Article 240 of the Constitution, President Draupadi Murmu has issued the Union Territory of Ladakh Reservation Amendment Regulation 2025, which amends Section 3(1) of the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004. It provides for up to 85% reservation in local jobs for residents of Ladakh. आर्टिकल 240 के तहत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक रेगुलेशन इशू किया है जो कि है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। इसमें सेक्शन 3(1) को अमेंड किया गया है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 का। इसके तहत वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को 85% रिजर्वेशन दिया गया है जॉब्स में। According to a recently released report, Bengaluru has become the metropolitan city with the highest number of leopards and is now known as the leopard capital of India. Around 80 to 85 wild leopards have been found in the city. तो
बैंगलोर जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स का मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है और इसको इंडिया का लायन कैपिटल भी घोषित किया गया है। यहाँ अराउंड 80 से 85 लेपर्ड्स पाए गए हैं। For the first time in history, the world's first unified global bird checklist, AV list, has been officially released. This list has been jointly prepared by scientists and experts from several prestigious global organizations. The AV list includes 11,131 species of birds, 19,871 subspecies, 2,376 genera, 252 families, and 46 orders. पहली बार हिस्ट्री में वर्ल्ड का पहला यूनिफाइड ग्लोबल बर्ड चेकलिस्ट एवी लिस्ट के नाम से ऑफिशियली रिलीज हो गया है। यह लिस्ट जॉइंटली प्रिपेयर किया गया था साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम सेवरल प्रेस्टिजियस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। According to a recent report released by the World Bank, the poverty rate in India declined from 27.1% in 2011-12 to 5.3% in 2022-23. As per a new demographic report by United Nations, India's population is projected to reach 1.46 billion by 2025. India's fertility rate has declined to 1.9 children per woman, which is below the replacement level of 2.1. यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया गया एक नए डेमोग्राफिक रिपोर्ट के तहत इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 1.46 बिलियन पहुंचने की संभावना है 2025 तक। इंडिया का फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो चुका है 1.9 चिल्ड्रन पर वुमेन तब पे, और इसका जबकि रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है वो 2.1 का होता है। To celebrate Prime Minister Narendra Modi's 11 years in office, the Namo app launched a Janman survey to gather public feedback on the country's progress. Prime Minister Narendra Modi का 11 साल का कार्यकाल को सेलिब्रेट करने के लिए नमो ऐप में लॉन्च किया है एक जनमन सर्वे, ताकि पब्लिक का ओपिनियन लिया जा सके कंट्री के फीडबैक, कंट्री के प्रोग्रेस को लेकर। An 800-year-old Shiva temple from the later Pandya period has been discovered in Belur, Tamil Nadu. एक 800 साल पुराना शिवा टेम्पल डिस्कवर हुआ है बेलूर तमिलनाडु से, जो कि लेटर पांड्या पीरियड से बिलोंग करता है। Flipkart has recently become the first Indian e-commerce company to receive an NBFC license from the Reserve Bank of India. This license allows Flipkart to directly offer loans to its customers. Flipkart जो है वो पहला इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बन चुका है जिसको आरबीआई के द्वारा एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह लाइसेंस अलाउ करेगा फ्लिपकार्ट को कि अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली लोन दे सकता है। Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, inaugurated the National E-Vidhan application NEVA for the Puducherry Assembly. With this, the Puducherry Assembly will now function as a fully digital and paperless legislature. Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs कौन? डॉक्टर एल मुरुगन, उन्होंने इनाग्रेट किया है पुडुचेरी असेंबली के लिए नीवा। नीवा क्या है? तो यह है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसके साथ ही पुडुचेरी असेंबली जो है अब फुल्ली फंक्शन करेगा एक डिजिटल और पेपरलेस लेजिस्लेचर की तरह। The Assam government has announced that it will issue weapon licenses to indigenous residents and locals living in sensitive and border areas for self-defense. असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये वेपन लाइसेंस इशू करेगा इंडिजिनस रेसिडेंट्स और वहाँ के जो लोकल हैं जो सेंसिटिव और बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए। The Union Cabinet has approved
two railway projects worth rupees 6,405 crore. The Kodarma Barkakna doubling 133 km in Jharkhand and Ballari Chikjajur doubling 185 km in Karnataka and Andhra Pradesh. यूनियन कैबिनेट ने दो रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। एक है झारखंड में कोडरमा बरकाकना डबलिंग और दूसरा है कर्नाटका आंध्र प्रदेश में बल्लारी चिक जाजूर डबलिंग। The Ministry of Railways is planning to make e-Aadhaar authentication mandatory for Tatkal ticket bookings to curb ticket fraud. टिकट फ्रॉड को कर्ब करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी करने का प्लान कर रहा है तत्काल टिकट के लिए। नेक्स्ट इज The Maharashtra government has announced the introduction of basic military training for students from class 1. The aim is to instill patriotism and ensure the holistic development of children. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्लास 1 से। इसका एम है कि पेट्रियाटिज्म इंस्टिल हो और चिल्ड्रन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। Union Minister for Minority Affairs Kiran Rijiju inaugurated the Lok Samvardhan Parv in New Delhi to promote the cultural and economic empowerment of minority communities. The festival provides a platform for minority communities in India to showcase their talents and traditions. मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का इनॉग्रेशन किया। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। क्यों? तो प्रमोट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ये फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपना टैलेंट और ट्रेडिशन शोकेस करने के लिए। India Post has launched a new postal service called Gyan Post to deliver educational, cultural, religious, and social books across the country at affordable rates. इंडिया पोस्ट ने एक नया पोस्टल सर्विस ज्ञान पोस्ट के नाम से लॉन्च किया है, जो कि एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस और सोशल बुक्स को कंट्री में अफोर्डेबल रेट्स में डिलीवर करेगा। The Union Ministry of Tourism has announced the development of India's first underwater museum and artificial coral reef around the decommissioned warship INS Guldar on the Sindhudurg coast of Maharashtra. The project will be implemented by Maharashtra Tourism Development Corporation. Its objective is to promote maritime tourism and environmental conservation. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ का डेवलपमेंट किया जाएगा। कहाँ? तो डीकमीशन्ड वारशिप INS गुलदार और सिंधुदुर्ग कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र का। ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैरीटाइम टूरिज्म को प्रमोट करना और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी प्रमोट करना। The Telangana State Department of Education has signed agreements with NGOs to upgrade teaching tools and improve the quality of education in government schools. गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और NGOs और टीचिंग को अपग्रेड करने के लिए किस गवर्नमेंट ने NGO के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? तो तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने। Amitabh Kant has resigned from the post of India's G20 Sherpa. He was appointed in July 2022 and played a key role during India's G20 presidency in 2023. हाल ही में अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। वो अपॉइंट हुए थे G20 का शेरपा जुलाई 2022 में, और इंडिया का प्रेसिडेंसी G20 का जब 2023 में था तब इन्होंने की रोल प्ले किया था। The government of India has recently instructed its public sector company India Rare Earths Limited IREL to suspend its rare earth elements export agreement
with Japan. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका नाम है IREL, इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड, उसने सस्पेंड कर दिया है अपना रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट अग्रीमेंट जापान के साथ. Cipla Health, a company in India's consumer healthcare sector, has launched a campaign titled Cipladine, Your First Aid Expert, with actress Neena Gupta appointed as the brand ambassador. Cipla Health एक मेडिकल कंपनी है. इसने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका टाइटल है Cipladine, Your First Aid Expert, और इसमें इनकी ब्रांड एम्बेसडर है नीना गुप्ता. The Government of India has chosen Vishakhapatnam, Andhra Pradesh as the national host for the 11th anniversary of International Yoga Day to be celebrated on 21 June 2025. International Yoga Day celebrate होता है 21 जून. तो इस बार 11वीं एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल योगा डे पे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल होस्ट की तरह चूज किया है. ऑन जून 12, 2025, एन एयर इंडिया बोइंग 787-8 Dreamliner crashed in Ahmedabad, resulting in the death of 241 people on board and one person named Vishwas Kumar Ramesh survived. 12 जून 2025 को एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया था अहमदाबाद में. इसके कारण 241 लोगों की मृत्यु हो गई और बस एक इंसान विश्वास कुमार रमेश जो था वो सरवाइव कर पाया. Google has established its first safety engineering center in Asia Pacific region in Hyderabad. This center will bring together teams focused on privacy, security engineering, and advanced cyber security to address India's digital landscape. गूगल ने अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में, एशिया पैसिफिक रीजन में हैदराबाद में. यह सेंटर जो है टीम को एक साथ लाएगा जो कि प्राइवेसी, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और एडवांस साइबर सिक्योरिटी पे वर्क करेगा ताकि इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप को सुधारा जा सके. To promote industrial development, the Punjab government launched the Udyog Kranti initiative on June 10, 2025. Its aim is to position Punjab as a competitive industrial destination and attract both domestic and international investment. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? तो उद्योग क्रांति इनिशिएटिव. उद्योग क्रांति इनिशिएटिव 10 जून 2025 को पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. इसका एम है कि पंजाब को एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav inaugurated India's largest automobile Gati Shakti multimodal cargo terminal at the Maruti Suzuki Manesar plant in Haryana. This terminal is part of the Haryana Orbital Rail Corridor and is connected to the Patli railway station through a 10-kilometer rail link. यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव है. उन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो हरियाणा के मारुति सुजुकी के मनेसर प्लांट में. यह टर्मिनल जो है वो हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का पार्ट है और यह कनेक्टेड है पटली रेलवे स्टेशन से एक 10 किलोमीटर के रेल लिंक के द्वारा. On June 14, 2025, Union Minister of State for Rural Development Kamlesh Paswan inaugurated India's first Garud Aerospace Agricultural Drone Indigenization Center in Chennai. This center will promote drone manufacturing and skill development in India. 14 जून 2025 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट कौन है? कमल पासवान. उन्होंने इंडिया का पहला गरुड़ एरोस्पेस एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है. कहाँ पे? तो चेन्नई में. यह सेंटर प्रमोट करेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट इंडिया में. नेक्स्ट इज
To simplify toll payments for private vehicles and promote seamless toll collection on national highways, the Government of India has launched a fast tag based annual pass worth rupees 3000. टोल पेमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए और नेशनल हाईवेज पे सीमलेस टोल कलेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फास्ट टैग बेस्ड एनुअल पास जारी किया है जो कि 3000 के आसपास होगा. Following Operation Sindoor, a Chiefs Chintan meeting was organized in New Delhi to strengthen coordination among former chiefs of the Indian Army. फॉर्मर चीफ्स ऑफ द इंडियन आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करने के लिए एक चीफ्स चिंतन नाम की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद. For the first time, Aizawl, the capital of Mizoram, has been connected to the Indian Railways network. The Bairabi Sairang railway line completed which links Aizawl with the rest of the country. पहली बार जो कैपिटल का मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल उसको पहली बार इंडियन रेलवेज नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड किया गया है. ये बैराबी साइरंग रेलवे लाइन कंप्लीट हुआ है जो कि लिंक करेगा आइजवाल को with the rest of the country. Madhya Pradesh has become the first Indian state to connect all urban local bodies through a single digital platform, e-Nagar Palika 2.0. The aim of this initiative is to make citizen services more transparent and efficient. मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जो कि सारे अर्बन लोकल बॉडीज को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 के नाम से कनेक्ट किया करेगा. द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू मेक सिटीजन सर्विस को और भी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना. Professor M. Satish Kumar has been appointed as the first Dean of Queen's University Belfast's new international campus in Gift City, Gujarat. गिफ्ट सिटी गुजरात में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट का एक नया इंटरनेशनल कैंपस खुला है और उसके डीन के तौर पर प्रोफेसर एम सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है. On June 19, 2025, the Ministry of Women and Child Development held the first national consultation on gender budgeting in New Delhi. The discussion focused on strengthening gender budgeting across sectors. For the financial year 2025-26, a gender budget of rupees 4.49 lakh crore has been allocated, which is 37% higher than the previous year. जून 19 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पहली बार एक नेशनल कंसल्टेशन हेल्ड किया जेंडर बजटिंग पे. कहाँ? तो न्यू दिल्ली में. यह डिस्कशन फोकस किया कि जेंडर बजटिंग को अलग अलग सेक्टर में स्ट्रेंथन कैसे किया जा सके. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जेंडर बजट कितने का अलोकेट किया गया है? तो रुपीज़ 4.49 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल से 37% इंक्रीज है. State of India's Environment 2025 in Figures report was released by Down to Earth magazine and the Center for Science and Environment. According to the report, no Indian state has scored more than 70 out of 100 in environmental performance. Andhra Pradesh ranked first in the environmental category with a score of 68.38. एक रिपोर्ट जारी किया गया था डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर. इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी इंडियन स्टेट ने 100 में से 70 से ज़्यादा नहीं स्कोर किया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में. जो फर्स्ट आया है वह है आंध्र प्रदेश और उसका स्कोर है 68.38. Prime Minister Narendra Modi inaugurated 28 development projects worth over rupees 5,900 crore in Siwan district of Bihar. A key highlight among them was the advanced locomotive manufactured at the Marhora rail factory meant for export to the Republic of Guinea. In addition, the projects include the Vaishali Deoria railway line project, the Vande Bharat Express between Patliputra and Gorakhpur, a sewage treatment plant, a battery energy storage system, and more. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 5,900 करोड़ की लागत का. कहाँ? तो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में.
इसका जो की हाईलाइट था वो था एडवांस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मरौरा रेल फैक्ट्री में हुआ था, और यह रिपब्लिक ऑफ गिनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए बना है। इसमें इस प्रोजेक्ट में और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, फिर अब पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, एक स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और भी बहुत कुछ। The Arunachal Pradesh government has declared 2025-2035 as the decade of hydropower projects with the aim of harnessing the state's estimated 58,000 megawatt hydropower potential. अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अगले 10 साल 2025 से 2035 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोषित किया है। इसका एम क्या है कि जो स्टेट का एस्टिमेटेड 58,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना। The East Coast Railway has launched the ECOR Yatra app to provide pilgrims with information on railway services, accommodation, and passenger facilities for the Rath Yatra in Puri, Orissa. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है, कौन सा? ECOR यात्रा ऐप, जो कि पूरी ओडिशा में होने वाले रथ यात्रा के लिए पिलग्रिम्स को रेलवे सर्विसेज, अकोमोडेशन और पैसेंजर फैसिलिटीज की जानकारी देगा। On the occasion of the NDA government's first anniversary, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu unveiled the Swarn Andhra at 2047 vision under the first step of good governance program. The aim is to rebuild the state's economy, infrastructure, governance and more. एनडीए गवर्नमेंट का पहला एनिवर्सरी के ओकेजन पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने एक विजन लॉन्च किया है, जो कि है स्वर्ण आंध्रा @ 2047, और किस प्रोग्राम के तहत? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ गुड गवर्नेंस के तहत। इसका एम है कि स्टेट का इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस को रीबिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट इज the Union Public Service Commission (UPSC) has launched Pratibha Setu to connect exam qualified candidates with employers. Under this initiative, candidates who did not make it to the final merit list can still be recruited by both government and private employers. ये बहुत अच्छा किया यूपीएससी ने कि उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु। इसमें वैसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू तक पहुंच गए थे लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, वैसे कैंडिडेट्स को लिस्ट किया जाएगा ताकि वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के द्वारा रिक्रूट किए जा सके। यूपी has become the top performing state in digital public procurement through the government e-marketplace GEM portal. GEM portal के थ्रू प्रोक्योरमेंट करने वाला, डिजिटल प्रोक्योरमेंट करने वाला जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। On June 24, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the centenary celebrations in New Delhi to mark 100 years of the historic dialogue between Mahatma Gandhi and Sri Narayan Guru. जून 24, 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया 100 साल का सेलिब्रेशन, दैट इज सेंटिनरी सेलिब्रेशन। कहाँ? न्यू दिल्ली में। किस चीज़ का? तो महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच में एक हिस्टोरिक डायलॉग हुआ था, उसका 100 साल। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, Tripura has officially become the third fully literate Indian state after Mizoram and Gaya. एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसमें मिजोरम और गोवा के बाद जो इंडिया का थर्ड फुल्ली लिटरेट इंडियन स्टेट है वो त्रिपुरा बन गया है। The government of India has announced that caste-based census in the snow-covered regions of Himachal Pradesh, Ladakh, Jammu and Kashmir, and Uttarakhand will begin in October 2026, while it will commence in the rest of the country in March 2027. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है तो स्नो कवर्ड रीजन जैसे कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में वह अक्टूबर 2026 को ही स्टार्ट हो जाएगा, जबकि पूरे कंट्री में यह स्टार्ट होने वाला है मार्च 2027 में।
On June 20, 2025, President Draupadi Murmu inaugurated the Rashtrapati Tapovan and Rashtrapati Niketan in Dehradun on her 67th birthday, which has been opened to the public. 20 जून 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का बर्थडे था, उनका 67th बर्थडे, और इस पे उन्होंने इनॉग्रेट किया है देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। कहाँ? तो देहरादून में, जो कि अब पब्लिक के लिए भी ओपन है। Ministry of Education released the Performance Grading Index PGI 2.0 report for 2023-24. According to the report, Chandigarh secured the top rank for the third consecutive year with 703 out of 1000 points, while Meghalaya ranked at the bottom. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। क्या? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0। इस रिपोर्ट के तहत जो तीसरे साल तक लगातार टॉप रैंक पे रहने वाला स्टेट है चंडीगढ़, जिसने 1000 में से 703 पॉइंट सिक्योर किया है, जबकि सबसे लास्ट पे मेघालय को रखा गया। The Maharashtra government has declared Hindi as the third common language for class 1 to 5 in Marathi and English medium government schools in the state. एक 3 लैंग्वेज वाला स्कीम आया था NEP के तहत, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हिंदी को डिक्लेयर कर दिया एज द थर्ड कॉमन लैंग्वेज। पहला मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 1 से 5 के लिए हिंदी को थर्ड कॉमन लैंग्वेज घोषित किया। On June 21, 2025, Prime Minister Narendra Modi led the world's largest yoga session with 3 lakh people in Visakhapatnam on the occasion of the 11th International Yoga Day. It was recorded in the Guinness Book of World Records as the largest yoga gathering in the world. योगा इंटरनेशनल योगा डे पे जून 21, 2025 में मोदी जी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा सेशन हेल्ड किया। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। कितने लोगों के साथ? 3 लाख लोगों के साथ। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया था एज द लार्जेस्ट योगा गैदरिंग इन द वर्ल्ड। On the occasion of International Yoga Day, Uttarakhand became the first Indian state to implement a yoga policy. Its objective is to establish Uttarakhand as a global destination in the field of yoga. योगा डे के इंटरनेशनल योगा डे के ओकेजन पे इंडिया का पहला स्टेट जो कि योगा पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा वो बन गया उत्तराखंड। इसका ऑब्जेक्टिव है कि उत्तराखंड को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जाए in the field of yoga. Assam government announced OBC status for the transgender community and 50% reservation in supervisor level posts for Anganwadi